students, how are you? Myself Saurabh from Civil Engineering Academy, and class 10 students, all of you, a very happy रक्षाबंधन। आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, उम्मीद है। थोड़ा सा कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम चल रही है, बस अब ऊपर वाला चाहेगा तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। अभी हालांकि कोरोना जो है अपने टॉप पे है, लेकिन फिर भी अगर ऊपर वाले की दुआ रही, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, ऊपर वाले का प्यार रहा, तो सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। क्लास 10th students, we are discussing about the salt. Last lecture we have already discussed the common salt and the caustic soda. Now we are going to discuss washing soda. ठीक है, आप एक प्रचार सुना होगा आपने, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिलती है ना। तो अब हमको देखना है कि क्या ये वही वॉशिंग पाउडर है, निरमा, व्हील एक्टिव, सर्फ एक्सेल, एरियल टाइप वाला, या फिर कोई दूसरा वॉशिंग पाउडर है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट्स पे। टॉपिक इज वॉशिंग सोडा। ओके, वॉशिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 into 10H2O, Na2CO3 into 10H2O, and the chemical name, chemical formula Na2CO3 into 10H2O, and the chemical name is sodium carbonate decahydrate. What? Sodium carbonate decahydrate. Na sodium, CO3 carbonate, deca 10 hydrate, H2. समझ में आया होगा कैसे नाम रखा गया? How can you prepare this compound? Preparation, the process known as by ammonia soda or solvent process. जिस प्रोसेस से इसको बनाया जाता है उसको बोलता है अमोनिया सोडा प्रोसेस और सॉल्वेंट प्रोसेस। This is 3 steps chemical reaction in which sodium carbonate decahydrate is formed. In first step, you take the limestone. Other name of limestone is calcium carbonate. Calcium carbonate. You take calcium carbonate and on heating, it converts into lime, that is calcium oxide. Calcium oxide, and produce CO2 gas, carbon dioxide gas. In first step, the CO2 gas is produced used in second step. How? You take saturated solution of sodium chloride. Saturated solution, that is no more amount can be added in the solution, that is called saturated solution. You take saturated solution of sodium chloride and bubble down ammonia gas and carbon dioxide. Okay, ammonia soda process बोलता है। तो carbon dioxide you take and ammonia at 15 degree Celsius temperature, you again it converts into sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. It is also called sodium bicarbonate. Okay, and ammonium chloride. This one, ammonium chloride. And in third step, you take the formed sodium bicarbonate 2 mole, and again it produces anhydrous sodium carbonate, and it produces anhydrous sodium carbonate. It is called soda S. Anhydrous का मतलब उसमें वाटर पूरी तरह से एब्सेंस होगा, हाइड्रस होगा तो आपका प्रेजेंस होगा, anhydrous मतलब एब्सेंस, and also produce carbon dioxide gas with water. Okay, now sodium carbonate is readily soluble in water. Sprangly means धीरे धीरे आराम से, sprangly soluble in water फॉर्मूला कर देते हैं and evaporate below 32 degree Celsius temperature. उसके बाद इसका evaporation करेंगे, you got crystal of sodium carbonate decahydrate. Okay, how many steps? There is 3 important steps and I think here that is the physical method. Solving the method is physical method. Chemical क्या है? First you take sodium, calcium carbonate. It is limestone. It is called limestone. On heating it produces calcium oxide and carbon dioxide.
व्हाइट क्रिस्टलाइन, जैसे आपने सॉल्ट देखा है ना क्रिस्टल फॉर्म होता है कॉमन सॉल्ट, वैसे ही ये भी होता है, दैट इज इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हिच रिएक्ट्स विद एसिड टू इवॉल्व CO2 गैस। जब भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। ये दो ही प्रॉपर्टी है इसकी। Uses, it is used for washing cloth. As by name, we can see that it is called washing soda. So, first use, you write in washing cloth. Second, for softening water. Students, water is mainly two types: hard water and soft water. Hard water does not give froth. छाग अच्छे तरीके से नहीं देता जब आप कपड़ा धोते हो, और पीने योग्य नहीं होता है। उसको जब आप सॉफ्ट करोगे तभी आप उससे कपड़ा धो सकते हैं या अपने यूज में ला सकते हैं। उसको सॉफ्ट करने के लिए, उस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए ये आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यूज होता है, दैट इज इन सॉफ्टनिंग वाटर। एंड नेक्स्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, कास्टिक सोडा ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बोरेक्स एंड वाटर ग्लास, इन सब के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है। आफ्टर दैट यूज एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट। लैबोरेटरी रिएजेंट का मतलब बहुत से ऐसे रिएक्शन होते हैं जो इसके प्रेजेंस में इसकी हेल्प से करवाए जाते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो वो रिएक्शन, वो जो आप डिजायर कर पाओगे वो आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको लैबोरेटरी रिएजेंट बोला जाता है। तो ये आपका हो गया क्या, वॉशिंग सोडा। अगेन केमिकल फार्मूला NaCO3 to 10H2O, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, preparation by ammonia soda or solvent process, 3-step reaction. In first step, calcium carbonate produce carbon dioxide gas. You take this carbon dioxide gas with saturated solution of sodium chloride with ammonia gas. It produces sodium hydrogen carbonate. You take this sodium hydrogen carbonate on heating, it produces anhydrous sodium carbonate. It is called soda S. Okay, and you know in sodium carbonate, in anhydrous sodium carbonate, water is strongly soluble. Okay, तो आपका सोडियम कार्बोनेट स्ट्रांगली सॉल्युबल होगा वाटर में, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट इवेपोरेशन बिलो 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यू गॉट क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेकिंग सोडा। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? दैट इज बेकिंग सोडा। Baking soda, the chemical formula is NaHCO3, NaHCO3, and the chemical name sodium hydrogen carbonate, sodium hydrogen carbonate. Okay. Sodium hydrogen carbonate. And how can you prepare? That is, you take the aqueous solution of sodium carbonate, carbon dioxide gas and water, and it forms sodium bicarbonate. The second name of this compound is sodium bicarbonate. Okay, NaCO3. कैसे बनाते हैं आप इसको? aqueous solution लेंगे, on passing CO2 gas, it forms sodium hydrogen carbonate. What is the properties of baking soda? Properties of baking soda is, it is white crystalline solid, as like washing soda, as like common salt, as like caustic soda. It also white crystalline solid, sprangly soluble in water, मतलब धीरे धीरे आराम से संयम से ये soluble हो जाता है water में. Its aqueous solution is mildly alkaline. Its aqueous solution is mildly alkaline, मतलब कि अगर वाटर के साथ आप इस बेकिंग सोडा को मिला देंगे तो वो बेस के जैसा बिहेव करेगा. एल्कलाइन मीन्स एल्कली नेचर, मीन्स बेसिक नेचर. द बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली. ओके, एंड इट्स एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा गिव येलो कलर विथ मेथिल ऑरेंज. येलो कलर विथ मेथिल ऑरेंज. एसिड बेस में आपने देखा होगा मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन का यूज, तो वहां जाके चेक कर लीजिएगा. बट नॉट गिव पिंक कलर विथ फिनोफ्थलीन. फिनोफ्थलीन के साथ पिंक कलर नहीं देगा. एल्कलाइन नेचर है, जाहिर सी बात है. इट प्रोड्यूस CO2 विथ एसिड. इट प्रोड्यूस CO2 विथ एसिड. हाउ? एसिड में H+ तो रहेगा आपका. यू टेक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट and it forms
सोडियम आयन H2O एंड CO2। जब भी आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे ये क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 गैस प्रोड्यूस करेगा। ओके, एंड द नेक्स्ट, इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग। जैसे क्या हुआ कि आपने अगर NaHCO3 ले लिया और इसको आप हीट दे रहे हो तो ये प्रोड्यूस करेगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसका नेचर होता है डिकम्पोजिशन का। What is the use of baking soda? It used in cooking food for making spongy and soft. खाने में, ब्रेड में, केक में बहुत सी ऐसी जगह होती है जहां आप बेकिंग सोडा मिलाते हो। क्यों? स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनाने के लिए। अब पूछेंगे सर ये स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता कैसे है? When a little quantity of baking soda mixed in cooking food, it on heating it produce CO2 गैस। जब आप मिला देंगे उसमें और फिर उसके बाद आप कोई उसका केक बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, जब हीट करोगे तो हीट पे क्या निकलता है? इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जाके स्पेस क्रिएट करती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो स्पॉन्जी हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो जाती है। ओके, एज एन एंटासिड टू करेक्ट द एसिडिटी ऑफ स्टमक। अगर ये एल्कलाइन नेचर का है तो इसका मतलब बेसिक नेचर हुआ उसका, और बेसिक नेचर है तो अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई, इफ द कैरेक्टर ऑफ एसिड इज इंक्रीज, दैट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस एंड इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू करेक्ट द एसिडिटी ऑफ स्टमक। नेक्स्ट, इन मेकिंग इफरवेंस्ड ड्रिंक्स, जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, माजा, स्लाइस, थम्स अप, कोका कोला, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखते हैं ना कि आप थोड़ा सा उसको सेक करिए तो बहुत तेज़ी के साथ प्रेशर क्रिएट होता है और उसके बाद अगर आप पीजिए तो उसके बाद गैस निकलने लगती है। ठीक है ना, तो वो आपका उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है उसमें। इन फायर एक्सटिंग्विशर, जो आपके आग लगने के को बचाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर लगाए जाते हैं, उसमें CO2 यूज़ होती है। कैसे CO2 वर्क होता है? जैसे मान लीजिए ये आपका कोई प्लेस है, ठीक है, और यहाँ पे फायर लग गई, यहाँ पे आग लगी हुई है, ठीक है, तो जैसे ही आप फायर एक्सटिंग्विशर से गैस छोड़ेंगे ये पूरा का पूरा लेयर बना लेता है लाइक अम्ब्रेला एंड इट स्टॉप द सप्लाई ऑफ, इट कट्स ऑफ या स्टॉप द सप्लाई ऑफ एयर। ये एयर की सप्लाई को स्टॉप कर देता है। एयर की सप्लाई स्टॉप होना मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाना, और ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो गई तो जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कोई चीज़ ज़्यादा नहीं जलेगी, तो ये आपकी आग जो होती है वो बुझ जाती है। इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाना, बेकिंग सोडा है तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज़ होता होगा। यही आपका है आपका बेकिंग सोडा, दैट इज केमिकल फार्मूला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेम एंड द फार्मूला NaSCO3। प्रिपरेशन 1 step, you take the sodium carbonate, passing CO2 gas, you produce sodium hydrogen carbonate, and properties white crystalline, sprangly soluble मतलब धीरे धीरे soluble होता है, aqueous solution mildly alkaline होता है। aqueous solution बेकिंग सोडा जो होता है वो येलो कलर देता है किसके साथ? मेथिल ऑरेंज के साथ, बट पिंक कलर नहीं देता है किसके साथ? फिनोप्सिलिन के साथ। इट प्रोड्यूस CO2 विथ एसिड, ये रिएक्शन रहा आपका। इट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, ये मैंने आपको दिखा दिया। आफ्टर यूजेज कुकिंग फूड मेकिंग स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट। थोड़ा सा बुक की हेल्प लीजिएगा। एज एन एंटासिड टू करेक्ट द एसिडिटी ऑफ स्टमक, एल्कलाइन नेचर है तो वो एसिडिटी को करेक्ट करेगा ही। इन मेकिंग इफरवेंसेंट ड्रिंक्स, दैट इज ड्रिंक्स जो आपके पीते हैं आप लोग, स्लाइस, माजा, ज़्यादातर जो झाग बहुत ज़्यादा देता है उसमें, ठीक है। इन फायर एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया। आफ्टर इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, दैट इज़ द बेकिंग सोडा। अब जो आपके पास कंपाउंड बचा है वो ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो दो कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। ये वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन इसको रिवीजन करिएगा। जब आपके पास अब आई थिंक 4 से 5 साल्ट हो गए हैं, कॉमन साल्ट हो गया, कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, तो इस चारों सॉल्ट का प्रिपरेशन यूजेस। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाउ कैन यू प्रिपेयर बेकिंग सोडा फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, ऐसे पूछेगा। व्हाट हैपन व्हेन CO2 गैस इज पास्ड ऑन सोडियम कार्बोनेट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि आप प्रिपरेशन लिखो, नहीं। व्हाट हैपन व्हेन CO2 पास विथ एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2CO3, तो आपको वहां पे रिएक्शन देना पड़ेगा। व्हाई इट इज यूज
एज एन एंटी एसिड. क्यों? बिकॉज इट्स नेचर इज एल्कलाइन, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज माइल्डली एल्कलाइन. इस तरह से वाई इट इज़ यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, हाउ दे वर्क, कैसे वर्क करते हैं, तो जैसे बताया गया. तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होगा, ठीक है ना. फिर उसके बाद व्हाट इफेक्ट ऑन फिनोफ्थलीन एंड मेथिल ऑरेंज, तो सीधे सीधे इट गिव येलो कलर विथ मेथिल ऑरेंज बट नॉट गिव पिंक कलर विथ फिनोफ्थलीन, ठीक है. व्हाट हैपन व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एसिड, इट प्रोड्यूस CO2 गैस. तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है. वीडियो देखने के बाद आप पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करेंगे, ठीक है ना. चारों साल्ट आप रिवीजन करेंगे, एक बार एसिड का पूरा चैप्टर रिवीजन करेंगे. क्यों? क्योंकि अब चैप्टर फिनिश होने की है. आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर विल बी लास्ट लेक्चर ऑफ दिस क्लास. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.